صدر کیسے منتخب کریں گے؟ انشاءاللہ یہ کور کمیٹی طے کرے گی انشاءاللہ۔ کب تک رہا ہوں گے اگر آپ سب مل کر جو ہے کوشش کریں گے؟ دیکھیے ہماری تو کوشش، ہماری تو تمنا یہ ہے کہ کل ہی بچے رہا ہو جائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب اللہ۔ قرآن پاک میں رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، کہ اے محبوب کام کے سلسلے میں مشورہ کر لیا کریں اور جب کسی نتیجے پر پہنچیں تو بس اللہ پر بھروسہ کر لیں۔ اس آیت کے پیش نظر آج الحمدللہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید احمد رضا سرقازی ان کے زیر قیادت اور زیر نگرانی اور زیر صدارت آج شہر ہبلی کے علماء اہل سنت کی ایک ضروری میٹنگ ہوئی، جس میں مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے بہت اچھی مفید باتیں ہوئی اور علماء کرام نے اپنے اپنے مشوروں سے نوازا اور یہ بہت ہی کامیاب میٹنگ رہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک یہاں جو کچھ باتیں ہوئی ہیں ان تمام باتوں پر ہم سب کو سختی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کے اندر اللہ پاک اتحاد، پیار، محبت اور استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شہر ہبلی میں جشن غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر علماء شہر ہبلی کے علماء کرام، حفاظ کرام ماشاءاللہ بڑی تعداد میں تشریف لائے۔ آج اس نشست، اس پروگرام کی صدارت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا سید احمد رضا صاحب قبلہ سجادہ نشین آستان قادریہ تورگل ہیرو ہنگل شریف نے فرمائی۔ آج اس محفل میں علماء کرام کی جانب سے شہر ہبلی کے حالات پہ غور و خوض کیا گیا اور جن بچوں کو قید خانے میں رکھا گیا ان کے لیے رہائی کی دعائی کی گئی، اس کے علاوہ ان کے لیے مالی تعاون ہو یا کسی طرح کا تعاون کے لیے بھی کوشش کی گئی، اور اس کے علاوہ خاص کر آنے والے کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں شہر ہبلی کا عظیم مرکزی ادارہ جسے ہم انجمن اسلام ہبلی کے سے یاد کرتے ہیں، اس کا ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو علماء اہل سنت نے ایک کور کمیٹی تشکیل دی ہے کہ ان کور کمیٹی میں جو علماء کرام ہیں انہوں حالات پہ نظر رکھتے ہوئے کون سا گروپ جو اہل سنت الجماعت سے کی خدمت کرے گا، جس میں اکثریت زیادہ علماء اہل سنت کی احباب کی ہوگی، وہ جو گروپ اہل سنت جماعت کو زیادہ خدمت کرے گا اس کی تائید کرنا، اس کا ساتھ دینا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں پر جو ایک کور کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ان کے مشورے سے تمام علماء کرام شہر ہبلی کے انجمن اسلام ہو یا دیگر معاملات میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو میٹنگ کی گئی ہے جس کی سرپرستی میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید احمد رضا صاحب قبلہ کی سرپرستی میں آج کی جو میٹنگ ہوئی، شہر کے حالات و ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا خدمات ہم سے کیا خدمات ہونی چاہیے اس خدمات کو پورا کریں، اور حالات پر غور کرتے ہوئے علماء کرام نے جو اچھے رائے مشورے دیے ہیں اس پر عمل کرنے کی تاکید ہمیں دی گئی ہے۔ میں تمام علماء کرام کو یہی آگاہ کرتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کی بقا کے لیے ہم سے جو کام ہو پورا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑے پیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ایک محفل کا انعقاد ہوا، جس میں شہر ہبلی کے علماء کرام بڑی تعداد میں شرکت کی سعادت حاصل کیے۔ ایک بہترین موقع تھا کہ اس حسین موقع پر علماء کرام نے چند ملک کے اور شہر ہبلی کے حالات پر تبصرہ کیا، ذکر کیا۔ اس میں جو بچے بے قصور جو ہے 8 ماہ سے
जेल के सलाखों में पड़े हुए हैं उनकी रिहाई के लिए उलमाए किराम का क्या किरदार होना चाहिए। अब तक उलमाए किराम का क्या रोल रहा? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम अपने अपने मोहल्ले के नौजवान और अमायदीन जो रहते हैं मुतवल्लियान किराम को हमेशा उसके फ़ायदे और वो रिहाई कराने के सिलसिले में उनको शौक़ जज्बा हमेशा दिलाते रहे और दुआ करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि अंजुमन इस्लाम हुबली की तरफ से ये कोशिशें जारी थी जो सुनने में आ रहा था। तो उसके मद्देनज़र उलमाए किराम ख़ास करके अपने दुआओं में और जो है अहले खैर हज़रात को उनके जो घर वाले हैं गरीब बच्चों के तो उनको माली मदद पहुंचाने में बहुत सारा रूल अदा किए हैं उलमाए किराम का। इसमें 30 जो है घरों को तो उलमाए किराम की जो कमेटी है उस कमेटी के मातहत पहुंचाया गया है। और रही बात उसके अलावा भी एक तकरीबन 40-50 ऐसे घरों को अहले खैर हज़रात को अपने मोहल्ले के जज्बा उनको दिखाकर उसके सवाब के उसकी अहमियत दिखाकर जो है उनके घरों को जो है मदद पहुंचाने का काम उलमाए किराम ने किया। हाल ही में एक बच्चों की माँ का भी इंतकाल हुआ, आप वहाँ पर जाकर उनको एक तसल्ली भी दे सकते हैं? नहीं, बहुत सारे हमारे उलमाए किराम ने शिरकत की है। ऐसे नहीं है कि उलमाए किराम नहीं गए हैं, और उलमाए किराम ने शिरकत भी किए हैं और उनके वो बच्चे की वालिदा जो इंतकाल की उसके मग़फ़िरत के लिए दुआ भी किए हैं। तो उलमाए किराम का रूल है, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम गए हैं। अब तक ऐसे बखूबी दिखाई नहीं दिया कि उलमाए किराम ऐसे आ रहे हैं, अगर बच्चों की रिहाई के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं, ठोस इक़दाम क्या उठाया गया उस पर? नहीं, देखिए अंजुमन इस्लाम हुआ अमायदीन अंजुमन इस्लाम की जानिब से एक कमेटी भी कोर कमेटी भी बनाई गई है। तो जब शहर हुबली के हमारे सियासतदान लोग हैं और अहले खैर अहले सरवत तमाम लोग मिलकर उसके बारे में जब कोशिश कर रहे हैं तो उन अहले खैर हज़रात को उलमाए किराम जो है शौक़ दिला रहे हैं, जज्बा दिला रहे हैं, उनकी मदद करने की तलक़ीन कर रहे हैं। तो अब ऐसी सूरत में उलमाए किराम का एक अलग ग्रुप बनकर जो है सामने आना मुनासिब नहीं था, तो हम लोग नहीं आए। अंजुमन इस्लाम आपकी राय मुक़द्दम थी, हमारी राय हम अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले ही से जो है देते आए। आने वाले अंजुमन के जो इलेक्शन है उसमें उलमा का क्या किरदार रहेगा? देखिए पहले भी उलमाए किराम का किरदार रहा है, अब भी किरदार रहेगा। क्या है, उलमाए किराम का कोई ज़ाती मकसद नहीं है, सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात का काम जो टीम जो है मजबूती के साथ करेगी, उलमाए किराम उसे साथ देंगे। तो क्या लगता है कि बच्चे कब तक रिहा होंगे अगर आप सब मिलकर जो है कोशिश करेंगे? देखिए हमारी तो कोशिश, हमारी तो तमन्ना ये है कि कल ही बच्चे रिहा हो जाए। कोशिश तो हमारी यही है, हम दुआ भी कर रहे हैं। अगर अंजुमन इस्लाम वाले जो है 8 माह से इससे पहले भी आप उनको बुलाकर कुछ न कुछ इस्लाह कर सकते थे कि बच्चों को किस तरह लाया जाए। अंजुमन इस्लाम से उलमाए किराम ने बात भी की है इससे पहले, जैसे कि हमारे हाफिज़ अलीमुद्दीन साहब वगैरह जो है बात किए हैं, ऐसा नहीं है कि बात नहीं की है, बात किए हैं, कोशिश है। और बहुत सारे अंजुमन के ज़िम्मेदारान जो है मेरे घर पे भी आए थे, उनसे भी मैं उस सिलसिले में गुफ्तगू किया हूँ। ईदी को लेकर जो मसला है जो बढ़ा था, आप हाथ से चला गया मतलब अभी भी क़ायम है, जो तरह तरह के मज़हब के लोग भी वहाँ पर जश्न मना रहे हैं, इसके मुतालिक आपका क्या राय है? देखिए अंजुमन वाले उसमें क़ानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, तो जो नहीं होना था उस पर हमें बहुत अफसोस है, दुख भी है, गम भी है। नहीं होना था, वो चीज़ हुई है। खासकर उलमा लोगों का इसमें ख़ास रोल रहता था, तो आप समझा सकते थे एक कमेटी बनाकर? नहीं, जब भी उलमाए किराम की ज़रूरत पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह शहर हुबली के अक्सर लोगों ने उलमाए किराम से रब्ता क़ायम किया कि वहाँ पर वो जो कुछ हो रहा है उसके बाद हमारी नमाज होती नहीं होती। तो इसमें खुलकर उलमाए किराम जो है कौम की रहनुमाई किए हैं, खुलकर किए हैं। शरई मसला क्या है, हमारे हज़रत मौलाना रफ़ीक आलम साहब को भी काफ़ी फ़ोन आए, तो वो ख़दीम आलिम है, तो वो भी पूरा जो है मुकम्मल जो है शरीयत की रोशनी में क्या है बताया गया है अंजुमन।
अब आगे क्या कदम है आपका जो कोर कमेटी का? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आज इस महफिल में इस नाचीज़ को उलमाए किराम ने सरपरस्त बनाया है, तो उसके बाद एक कोर कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें 6-7 लोग हैं, जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद निसार अहमद क़ादरी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद आली मुस्तफ़ा क़ादरी साहब, उसके बाद हज़रत अल्लामा मौलाना रफ़ीक आलम साहब, उसके बाद हज़रत हाफिज़ व क़ारी अलीमुद्दीन साहब, उसके बाद हमारे हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद इमरान ख़ान साहब, और जो है हमारे शहर हुबली के मशहूर जो है खिदमत गुज़ार हाफिज़ व क़ारी माजिद साहब, ये कोर कमेटी बनाए गए हैं। ये पूरे जो है मोहल्लों में नज़र रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक रिक्वेस्ट जो अंजुमन इस्लाम हुबली में हिस्सा ले रहे हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि भले 2 टीम बने, 3 बने, 4 बने, जितने भी बने, तो जो टीम बना रहे हैं उनके सुदूर जो बनने वाले हैं उनसे मेरी एक अपील ये है कि अहले सुन्नत वल जमात के हज़रात को इसमें लिए और अहले सुन्नत वल जमात को ताकत पहुंचाने के जज्बे से उसमें दाखिल हो। सदर कैसे मुंतखब करेंगे? इंशाल्लाह ये कोर कमेटी तय करेगी इंशाल्लाह, जिसमें अहले सुन्नत वल जमात के कौन है देखा जाएगा। उसके बाद उनकी खिदमत अहले सुन्नत वल जमात के लिए कितने मुफीद होंगे उस पर गुफ्तगू होगी, तो उसके बाद फैसला लिया जाएगा। तो अंजुमन को लेकर जो तनाज़ा चले हैं अभी फिलहाल केयर टेकर को लेकर, तो उसके बारे में आपकी क्या है? कई सोनू साहब अभी सदर नहीं रहे, माजी सदर रहे, तो उसके मुतालिक ठीक है, अगर माजी सदर क़ानूनी एतबार से हुए हैं तो उनको होने दीजिए। जो इलेक्शन का वक्त आएगा, जब इलेक्शन होगा, देखिए हमारे उलमाए किराम का कुछ इलेक्शन होना नहीं होना इस पर हमें ये नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जब इलेक्शन होगा, जो टीमें बनेंगी, तो अहले सुन्नत वल जमात के नौजवानों को उसमें लिया जाए और हर मोहल्ले में अहले सुन्नत वल जमात का काम हो। उसके अलावा तो खिदमत अंजुमन के पहले से होते आए हैं और भी बढ़कर जो है खिदमत होना चाहिए। हमारा मकसद यही है, आज हो इलेक्शन, 1 माह के बाद हो, चाहे 6 माह के बाद हो, हमारा ये नहीं है। उससे हमें सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे लोगों को तलाश करके कौम की रहबरी करना है कि भाई फ़लाँ टीम अच्छी है, फ़लाँ लोग अच्छे हैं, कौम की ये टीम जो है काम कर सकती है, तो ये जहन हमें देना है। वो कोर कमेटी के ज़िम्मेदार उसे करेंगे।